Assalamu alaikum Budians. How are you all? I hope you all are doing great. Today we will read unit number 3 of English novel The Brave Little Tailor part 3, The Unicorn and the Boar. The king was already sorry about his promise. You can't marry my daughter yet, he said. I need your help again. In the forest there's a white unicorn. It has a long, sharp horn. It's a danger to my people. Please catch it for us. Just one unicorn? Asked the tailor cheerfully. I can kill 7 at one blow. Don't kill it, said the king. Bring it back here alive. ओके अब किंग ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया. उसने टेलर से कहा कि अभी नहीं, अभी मुझे तुम्हारी और हेल्प की ज़रूरत है. तो उसने फिर कहा क्या उससे कि क्या हेल्प की ज़रूरत है. कि फॉरेस्ट में एक वाइट यूनिकॉर्न है. ये देखिए, ये नीचे बना हुआ भी है, थोड़ा अगर आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा हो. ठीक है, तो वो जो है उसका हॉर्न बहुत शार्प है और ये उससे ख़तरा है मेरे लोगों को. तो तुम अगर उसको जो है वो हमारे लिए पकड़ सको. उसने कहा सिर्फ एक यूनिकॉर्न, मैं तो 7 को एक वक्त में मार सकता हूँ. किंग ने कहा नहीं, उसे मारना नहीं है, उसको ज़िंदा लेकर आना है. सो द टेलर आस्क्ड फॉर अ रोप एंड एन एक्स. He left the palace. The 100 horsemen followed him. Again he made them wait outside the forest. फिर 100 horsemen गए साथ. फिर उसने उनको जंगल के बाहर ही रोक दिया. He soon found the unicorn. It ran straight at him with its horn down. The tailor jumped behind a tree. The unicorn could not stop. Its horn went deep into the tree trunk. अब ये इस पैराग्राफ की पिक्चर बनी हुई है कि उसने क्या किया. टेलर ने वो दरख्त के पीछे रुका, भागता भागता दरख्त के पीछे रुका और यूनिकॉर्न से रुकने नहीं हुआ. तो यूनिकॉर्न का जो हॉर्न था वो दरख्त के अंदर चला गया, ट्री के ट्रंक में चला गया. नाउ आई हैव गॉट यू, सेड द टेलर. He put his rope around the animal's neck. With his axe he got its horn out of the tree. He led the unicorn to the horsemen, and they took it to the king. The king still did not want to keep his promise. There is a wild boar in the forest, he said. It has killed some of my people. Catch it for us, then you can marry my daughter. अब यूनिकॉर्न को तो वो ले गया, लेकिन किंग ने फिर भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया और उसको कहा कि एक और भी बोर सा है वो फॉरेस्ट में, वो हमारे लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाता है, उसको कैच करके लाओ तो फिर मेरी बेटी से शादी कर लो. Just one wild pig, smiled the tailor. I can kill 7 at one blow. For a third time he went to the forest and again he made the 100 horsemen wait outside. वही जो उसका तरीका था, फॉरेस्ट से बाहर ही उनको रोकता था. He soon found the wild boar. It ran after him. Cleverly the tailor ran into a little church. The animal followed him. The tailor jumped out the window. The boar could not follow. The tailor ran around the church. He shut the door from outside. The boar was in prison there in the church. The tailor called the horsemen. They saw the boar in the church. He has done it. He has caught the boar, they told the king. See in the picture कि खुद अंदर गया, वो बोर उसके पीछे भागकर अंदर गया, पिग भागकर अंदर गया और ख़ुद वो विंडो से बाहर आ गया. लेकिन क्योंकि वो बड़ा जानवर है वो विंडो से बाहर नहीं आ सकता और भागकर फिर उसने चर्च की विंडो बंद कर दी और उसने हर हॉर्समैन को बुला के कहा कि देखो ये जो है वो उसने फिर पकड़ लिया है. सो एट लास्ट द किंग केप्ट हिज प्रॉमिस. ही गेव द टेलर हिज डॉटर एंड हाफ हिज लैंड, बट ही डिड नॉट नो दैट हिज डॉटर्स न्यू हस्बैंड वॉज ओनली अ टेलर. तो उसने उसको उसकी शादी कर दी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका जो डॉटर का जो हस्बैंड है वो सिर्फ एक टेलर है. आई विल कट यू, आई विल स्यू यू. The tailor was happy. How lucky I am, he thought. It all began when I killed 7 at one blow. And now I have married the king's daughter, and I've got half of the king's land. He lived happily for a long time. Then one night the tailor talked in his sleep. I cut and I sew. I measure and I mend, he said. I am the best tailor in the town. The princess heard him. अच्छा जी, अब शादी भी हो गई, काफ़ी अर्सा वो बड़े खुश भी रहे. फिर एक रात वो सोया हुआ था तो वो ख्वाब में ही ना अपनी जो टेलर जब होता था तब जो बातें करता था वो कर रहा था. तो प्रिंसेस ने वो सुन ली. इन द मॉर्निंग शी हरिड टू हर फादर्स पैलेस. My husband is only a tailor, she cried. A tailor can't marry a princess. You must do something. Your husband is a tailor? Cried the king. I will do something, he promised. Let me think. Later, the king called for his daughter. I have an idea, daughter. Tonight, some of my servants will stay outside your room. Wait until your husband is asleep. Then open the door. They'll run in and tie him up with ropes. Then we'll put the little tailor on a ship. You will never see him again.
तो अब वो भाग कर गई, उसने कहा कि मेरा हस्बैंड तो सिर्फ एक टेलर है और एक टेलर एक प्रिंसेस से शादी नहीं कर सकता। तो उस किंग भी हैरान हुआ कि अच्छा ऐसा है। तो फिर उसने कहा कि आज मैं ये करूँगा कि तुम्हारे रूम के बाहर सर्वेंट्स खड़े करूँगा, तो जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो वो अंदर जाएंगे, उसको टाई कर देंगे और फिर हम उसको किसी शिप के साथ बांध के भेज देंगे और तुम उसे दोबारा कभी नहीं देखोगी। द प्रिंसेस वॉज प्लीज्ड बट वन ऑफ द सर्वेंट्स टोल्ड द टेलर अबाउट इट। थैंक यू सेड द टेलर, आई विल स्टॉप देम। अब प्रिंसेस तो बड़ी खुश हुई, लेकिन एक सर्वेंट्स ने बीच में से टेलर को ये बात बता दी। दैट नाइट द टेलर ले क्वाइटली इन बेड। द प्रिंसेस थॉट ही वॉज asleep, so she got up. She opened the door of their room. Suddenly her husband jumped up. I'll cut you, I'll sew you, he shouted. This little tailor has killed 7 at one blow. He has killed 2 giants. He caught a unicorn and a wild boar. He is not afraid of a few men outside his bedroom door. तो उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में ये बातें की कि मैंने 2 जाइंट्स को भी मारा है, मैंने यूनिकॉर्न भी पकड़ा है, मैंने वाइल्ड बोर भी पकड़ा है, मैंने एक ब्लो में 7 को मैं मार सकता हूँ। द फ्राइटेंड सर्वेंट्स रैन अवे। आफ्टर दैट नो वन एवर ट्राइड टू हर्ट द लिटिल टेलर अगेन। ही लिव्ड लाइक अ किंग फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, बट ही ऑलवेज वोर द बेल्ट दैट सेड 7 at 1 blow। तो उसने ये बातें की ना, तो सारे सर्वेंट्स डर के भाग गए और उसके बाद किसी ने भी उस टेलर को कभी तंग नहीं किया। उसने बाकी सारी ज़िंदगी जो है वो एज किंग गुजारी, लेकिन उसने वो अपनी बेल्ट कभी भी नहीं उतारी जिसके ऊपर लिखा हुआ था 7 at 1 blow। इसके साथ टेलर की स्टोरी जो है वो एंड हो गई है। अच्छी तरह से रीड आउट करें, समझें, विद एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश किया करें। जहाँ क्वेश्चन मार्क हो वहाँ पर क्वेश्चन की तरह पढ़ें, जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क हो उधर एक्सक्लेम करके पढ़ने की कोशिश करें। अगर आगे हैप्पी फीलिंग है तो ज़रा खुशी के साथ पढ़ने की कोशिश करें, सैड फीलिंग है तो थोड़ा सैड होकर पढ़ने की कोशिश करें। इस तरह से आपकी रीडिंग के अंदर एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।